Okay, turn on your video part and Yes, sir. सर કેટલા મિનિટ કીધી? हाँ 9:22 right 9:22. ઓકે સર. Okay, just draw that. Yes, just bigger one. थोड़ी मोटी बनाओ એટલે આપણને વિઝિબલ પ્રોપર હા થાય. સર. મોટું સર્કલ બનાવો એટલે કશો વાંધો નહીં, બરાબર. Make it big, right? Make it big, right? Yes. So now just mark 12, 3, 9, whatever you like, right? 12, yes, 3, 6, and 9, right? Okay, so now put 9:22 on it. 9:22. Okay, 9:22. That means 4, that will become 20. Right? So you need to mention the 4, 5, and 6 also. So that is not 22, my dear friend. That is 11, we can consider. હા સર. 9 ને હા એ તો 10 થઈ, બરાબર ને? Just make it 1, 2, 3, 4, 5. યસ સર. 1, 2, 3, 4, 5. So you will get idea, because this is very important thing, right? That you need to understand. और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आप इंटरव्यू में एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, उसमें इसी टाइप के अगर आप सर्विंग के रिलेटेड होती है, ठीक है? तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. वो तो 11 मिनट हो गया ना, 5. हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आप थोड़ा. अरे भाई नीचे आवे वो 5 અને 4 4 ની और વચ્ચે 5 के बीच में. હા સર, સોરી. હું કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો. હવે બરોબર છે સર? Yes, now it is okay. Now can you explain what will be the angle? હા So સર. that's what we are practicing right now. अब एंगल कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो आपको पहले ये सर. लिखना होगा कि जब मेरी 60 मिनट होती है सर, राइट, 60 मिनट होती है, तब मेरा एंगल बनता है 360 डिग्री. ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, इनके बीच की मिनट कितनी हुई टोटल, आप मुझे कैलकुलेट करिए, बताइए. હા सर. पहले 9 से 10 तो 5 मिनट हो गई, 10 से 11 फिर 5 मिनट. तो ऐसे कर करते काउंट करके आ जाओ. 30, 35, 36 एंड 37. 37. मैं ओके? 37 मिनट हुई. यस और नो? હા સર. आपको हमारी आवाज आ रही है? સર હવે 30 રાશि મૂકવાની. आपको मेरी आवाज आ रही है? હા સર. હેલો. ओके, नाउ कैलकुलेट. यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? યસ સર. Okay, fine. So yes, that is the correct. Just you need to mention the unit also. Just you need to mention the unit also. 360 degree. You just put a degree there. 37 minute. 60 minute. Okay. Now the minute cancel થઈ જશે. We will cancel out that minute. And what will be the answer? 6 6 37 into 6 will be your answer. સર 222. Yes, simple. इसमें किसी को डाउट है? Any doubt in this? Clear? Okay, fine. So this what we have done till now. Now we are moving on. सर Okay, fine. Yes.
ये 37 मिनट जो आया है सर, इसको फिर से अगर बताते, क्योंकि लीव हो गए थे सर, कंफ्यूजन है। इसको काउंट करना है 9 से। पार्थ आप दिखा दो कहाँ से हमने काउंट किया, कैसे काउंट किया। 9 से 10 के સર बीच આ कितने मिनट 37 होते हैं? મિનિટ ને? हाँ, वो कैसे 37 आया? મિનિટ ક્યાંથી આવી સર? આપણે 24 મિનિટ હતું ને, 24 કે 22 મિનિટ? 22 મિનિટ આ 22 મિનિટ 12 થી કે 22 સુધી, એટલે 22 મિનિટ એ થઈ, અને 9 થી 12 સુધીની 15 મિનિટ, એટલે 22 પ્લસ 15 એટલે 37. ઓકે. ओके ओके, डन। तो आपको 9 से लेके काउंटिंग स्टार्ट करें। हाउएवर इट इज यू कैन से द प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपने जो ओवर एंड 9 पे रखा है वो थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ गया होगा, है कि नहीं? घड़ी में जब आप देखते हो उसके रोटेशन के हिसाब से 9 पे नहीं रहेगा, बट यू कैन से द अप्रोक्सीमेटली द एंगल विल बी 220, राइट? क्लियर? और वो हो जाएगा। ये आपने डिग्री दे दी, दैट इज ओके। अगर आपको फर्दर एक्यूरेसी चाहिए तब आप डिग्री, मिनट और सेकंड में जाएंगे, ठीक है? सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन विथ यू, राइट? ओके, टर्न ऑफ योर वीडियो पार्ट। ઓકે સર. And what we are going to discuss is we are going to understand the theodolite, right? Theodolite is nothing but, I think screen is visible. Okay. So what we are going to learn today is it is a practical number 1, you can say. You just remember the spelling theodolite. You can remember like this. અને The સર just હવે divide this. ન્યુ ટોપિક લખીને હવે हाँ, practical 1 you can write down. First thing is basics, yeah, unit conversion. Now in this practical 1, what you need to understand first, right, is that just you can have a spelling. You need to remember the spelling of the theodolite. Just cut this word into 2 parts like this, right? तो ध तो आपको मालूम है, THE, ठीक है, और ओडोलाइट, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, थियोडोलाइट, राइट? सो आपको ये याद रखना है, ठीक है? और व्हाट विल बी द फ्लो? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि थियोडोलाइट क्या है, ठीक है, उसको हम समझेंगे। उसके बाद थियोडोलाइट का सर्वेइंग में क्या यूज होता है वो हम समझेंगे, ठीक है? और थियोडोलाइट इज नथिंग बट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, राइट? जैसे हमारा कंपास सर्वे था, ठीक है, कंपास थे, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वे कंपास, उसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? और वी विल सी द स्केच ऑफ द थियोडोलाइट विथ इट्स कंपोनेंट, कि थियोडोलाइट जो है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है, और उसका यूज क्या होता है वो हम सीखेंगे, राइट? सो लेट्स हैव ए overview of the theodolite. This is an instrument called the theodolite. आपको ये विजिबल है, ठीक है? यस सर. Okay, so this is a theodolite, a image of a theodolite. So इसमें क्या होता है कि आपको ये थोड़ा मिक्सअप है, ठीक है? मिक्सअप किसका है कि आपने प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास जो है पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, और आपने डंपी लेवल भी पढ़ा है, ठीक है, डंपी लेवल, राइट? तो आप इसे ऐसे मान के चल सकते हैं कि हमने जो कंपास है, ठीक है, वो इस प्लेट के अंदर फिक्स कर दिया है, ठीक है? जो हम रीडिंग लेते थे कंपास के थ्रू, उस कंपास को हमने इस प्लेट में फिट कर दिया, ठीक है? और जो डंपी लेवल का जो टेलीस्कोप है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे फिट कर दिया। समझ में आ रही है बात? इट्स ए मिक्सअप, राइट? हमने क्या किया कि दो इंस्ट्रूमेंट को मिला के एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, यू कैन से, राइट? अब क्या है, अगर इसको आपको ऑपरेट करना है, इसको आपको ऑपरेट करके रीडिंग्स और डेटा कलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको इसके कंपोनेंट्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ स्क्रू है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे नीचे भी फुट स्क्रू है, यहाँ पे टेलीस्कोप के सामने एक स्क्रू है, यहाँ पे भी स्क्रू है, दिख रहा है आपको? ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स है। यहाँ पे भी मिरर है, ठीक है, आप जैसे देखेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि हमें इसके जो फंक्शंस है, जैसे किसी भी आप मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें कैसे अलग अलग एप्लीकेशंस आती है, तो सिमिलर वे
इस थियोडोलाइट में भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, और उस कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का एक अलग फंक्शन है, उसका जो है एक फिक्स्ड जो है फंक्शन है, ठीक है, कि अगर इस स्क्रू को आप रोटेट करेंगे तो थियोडोलाइट में इस टाइप का ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो वो हम सीखेंगे। तो पहले हमें जो है, अगर आपको मैं ये थियोडोलाइट दे दूं और इसको आपको असेंबल करने के लिए बोलूं कि आपको मैंने अलग अलग कंपोनेंट दे दिए, मान लीजिए कि बेस प्लेट दे दी, ठीक है, ट्राई बेच दे दी, उसके बाद कंपास दे दिया, ठीक है, उसके बाद फ्रेम दे दिया और टेलीस्कोप दे दिया और ये सर्कल, वर्टिकल सर्कल, तब आप इसको असेंबल कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो समझेंगे तो आपके लिए इसकी स्केच बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी वेरी इजी इफ यू आर असेंबलिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, राइट। सो ये आपको पहले तो याद होना चाहिए कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है भाई। चलो संतोष, इसका नाम बताइए, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ सामने ही लिखा है, कैसे आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। थियोडोलाइट। थियोडोलाइट, राइट। ओके, उमेश कुमार नहीं है, ओके, फिर सुजाल, सुजाल खूंट, सुजाल, ओके, कुलदीप दादल, Kuldeep Dadal. See, when I'm asking the question, you need to respond. Otherwise, I will put absent for this session. That is the simple thing, right? Okay. So you need to respond me quickly. Otherwise, you will be marked as absent. Okay. Rajkumar Vishnu. Rajkumar. See, this is very a bad practice you can consider. You need to at least respond me. Otherwise, I will simply mark absent for this session. Anand. Yes, sir. What is the name of the instrument? Theodolite, sir. थियोडोलाइट, राइट। तो आपके माइंड में ये इमेज तो आ ही जानी चाहिए कि इसमें क्या है, इट्स ए मिक्सचर, कंपास है इसमें और टेलीस्कोप भी है, और कुछ रीडिंग लेने के लिए यहाँ पे भी साइड में भी कंपास है, ठीक है। यू कैन कंसीडर, हमने दो कंपास इसमें फिट किए हैं, यू कैन कंसीडर लाइक दिस, राइट। तो बेसिकली क्या है थियोडोलाइट सर्वेइंग? सो इट्स the system of surveying in which the angles are measured with the help of the theodolite, okay, and this process we are called a theodolite surveying, okay. So what we can measure from this instrument, we can measure horizontal angle, right. What we can do, we can measure the vertical angles. See, in case of dumpy level, you just have a level, not the angle. आप एंगल मेजर नहीं कर पाएंगे डंपी लेवल की मदद से, है कि नहीं। आप डंपी लेवल की मदद से सिर्फ लेवल आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस लेवल पे है आपके रेफरेंस लाइन से। सिमिलरली आप अगर कंपास की बात करें, ठीक है, प्रिज्मेटिक या सर्वे, तो उसमें सिर्फ आपको एंगल मिलेगा। लेकिन थियोडोलाइट में क्या होगा, जबकि हमने मिक्स किया है, तो आप हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर कर पाएंगे, आप वर्टिकल एंगल भी मेजर कर पाएंगे और लेवल भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। ये तीनों चीज जो है वो एक साथ हम कर सकते हैं थियोडोलाइट की मदद से, ओके। सो yes, this you need to write down in your class note. So the theodolite is the most accurate surveying instrument mainly used for. So what are the uses of this theodolite instrument? जो इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज क्या है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया
कि पहला तो काम ये करेगा कि मेजरिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, राइट। देन if you want to locate a point on a line, it is very easy, okay, by using the theodolite. आप किसी भी लाइन पे एक पॉइंट को मार्क करना चाहते हैं, मान लीजिए इस टाइप का, सो इट विल बी वेरी इजी बाय यूजिंग द थियोडोलाइट, ठीक है। जैसे चेन सर्वे में हम क्या करते थे, राइट, दिस इज मार्किंग एज ए, दिस इज एज ए बी, ओके, देन वी आर मेजरिंग ऑफसेट्स. So in similar manner, if you want to locate a point on a line, it is very easy with the help of the theodolite, right? Then if you want to prolong the survey line, मान लीजिए आपका ट्रावर्स है, ठीक है। अब ट्रावर्स के बारे में आपको पता है, दो टाइप्स के ट्रावर्स होते हैं, एक होता है ओपन ट्रावर्स, एक होता है क्लोज ट्रावर्स। सो ओपन ट्रावर्स का एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए रिवर जो है, ठीक है, तो रिवर जो इस तरह से बहेगी, ठीक है, तो उसका जो है कोई क्लोज सर्किट नहीं बनेगा। सो इट इज ओपन ट्रावर्स, राइट, ओपन यू कैन कंसीडर। रिवर हो गई या फिर किसी भी, आप रेलवे ट्रैक ले लीजिए, ठीक है, ओपन सर्किट नहीं बनता, ठीक है, ओपन ट्रावर्स, दिस इज कॉल्ड ओपन ट्रावर्स। तो कोई भी लाइन फीचर है, यानी कि रेलवे लाइन हो गई, रोड नेटवर्क्स हो गई, जो क्लोज सर्किट ना बनाते हो, वो है आपके ओपन ट्रावर्स। और क्लोज ट्रावर्स में क्या होता है, आप अपना एग्जांपल ले सकते हैं, कैंपस का एग्जांपल ले सकते हैं, क्लासरूम का एग्जांपल ले सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि क्लासरूम है सपोज, तो इस टाइप का कुछ जो है बाउंडेड फिक्स्ड है, ठीक है, बाउंडेड है, और उसकी बाउंड्रीज जो है और क्लोज सर्किट बनाते हैं। सो दैट वी कैन कंसिडर एज ए क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड ट्रावर्स। आर गेटिंग दिस और नॉट? और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके बीच के एंगल्स हम फाइंड करते हैं। अब जो है ये थर्ड पॉइंट जो है उसको आप कैसे समझेंगे, कि हम ओपन ट्रावर्स की मदद से समझेंगे। मान लीजिए आपकी रोड की सेंटर लाइन जो है इतनी है, ठीक है, ठीक है, और उसको आपको एक्सटेंड करना है, तो हम थियोडोलाइट की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट था सपोज, ठीक है, तो आप उसको शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आए और सम बेसिक कैलकुलेशन की मदद से आप जो है इस सर्वे लाइन को आगे लेवल के हिसाब से जो है आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। आर गेटिंग दिस और नॉट? तो बेसिकली आप किसी भी सर्वे लाइन को, किसी भी सेंट्रल लाइन को आपको एक्सटेंड करना है, ठीक है, तब आप थियोडोलाइट यूज कर पाएंगे, ठीक है, और सबसे इजी रहेगा थियोडोलाइट यूज करना, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था कि डंपी लेवल की मदद से आप सिर्फ लेवल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थियोडोलाइट की मदद से आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंगल और लेवल भी फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये रोड इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि ए पॉइंट और यहाँ पे जो है बी पॉइंट, उसके बीच का कितना लेवल डिफरेंस है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 0 है, तो मान लीजिए इसको आप 2 फुट या फिर 2 फीट या फिर कंसिडर कर सकते हैं। तो लेवल कितना चेंज हुआ, ए और बीच का जो लेवल है वो क्या है, वो आप थियोडोलाइट की मदद से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग आउट द ग्रेड्स, ग्रेड्स इज नथिंग बट द स्लोप यू कैन कंसिडर, ठीक है, थीटा एंगल, जो बेसिकली क्या है कि वो एक वर्टिकल एंगल ही है, ठीक है। सो वी कैन सेट द ग्रेड्स ऑफ द रोड्स, रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, ओके, एटसेट्रा। तो ग्रेड जो है वो आपका स्लोप है। देन रेंजिंग द कर्व्स, तो रेंजिंग प्रोसेस आपको मालूम है, कौन बताएगा कितने टाइप के रेंजिंग्स होते हैं? खुशी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेंजिंग, ये आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है। Sir, reciprocal ranging and linear measurement. Okay, you can say the direct ranging or indirect ranging. So Yes, डायरेक्ट sir. रेंजिंग में क्या होता है कि आपके जो स्टेशन है, ठीक है, रेंजिंग रोड है, वो विजिबल है एक दूसरे से, ठीक है, वो विजिबल है, ठीक है। और इनडायरेक्ट रेंजिंग में क्या होता है कि दूर कहीं पे है, तो आप जो है उसके बीच का रेंजिंग रोड जो है नहीं देख पाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो हम यहाँ पे कर्व जो है हमारे रोड पे आप
जब ट्रैवल करते हैं तो क्या आता है, हॉरिजॉन्टल कर्व्स आते हैं, ठीक है, इस टाइप के, लाइकवाइज। सो दिस इज अ प्लान ऑफ ए रोड यू कैन से, ठीक है, और दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट यू कैन से, वेयर यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड यू वांट टू गो एट द बी, right? So in between you will find curves are there in the road network, curves હશે, બરાબર. તો આ કર્વ નું જે છે ને એ આપણે સેટઅપ કરવું પડે, બરોબર, so that we can minimize the road accident because of the geometry. So road geometry ની અંદર તમારે રેન્જિંગ કરવું પડે. તો રેન્જિંગ is nothing but you need to setting the curves, so that setup of the geometrical features of a road that you can do, that you can perform, or that you can set by the theodolite. And tachyometric survey, it is, you can say, the trigonometric, right? So मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, वो जो है आपका टेक्योमेट्रिक का एग्जांपल होगा. मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, और अपनी लेवल जो है डिसाइड कर लीजिए कि वी आई एम स्टैंडिंग एट एक्स पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्री है लेट्स से, ओके. सो और यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है, योर विजिबल जो है, आप जो है, तो टेक्योमेट्री क्या है, ठीक है. अगर मैं आपको कहूं कि आपको ये ट्री की जो है हाइट फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, व्हाट विल बी योर लॉजिक? मुझे, ठीक है, आप x डिस्टेंस x जो है यू कैन से पॉइंट पे आप खड़े हैं और यहां से आप देख रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, आपकी जो ये लाइन होगी वो स्ट्रेट होगी एकदम. अब आप मुझे बताइए कि आप ट्री की हाइट कैसे फाइंड करेंगे? एनी लॉजिक? वो यस कौन सर. सा फॉर्मूला है जो, यस आप बताइए मुझे कि कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले सर इसका हम ये देखेंगे कि इसका एंगल कितना बन रहा है, कहाँ से एंगल बन रहा है? मेरे से और ट्री के बीच में जो है सर वो एंगल जो बन रहा है वो कितना है. अगर एंगल हमको पता चल जाता है तो वो सर ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले से जो है सर साइन थीटा कोस थीटा करके हम इसको हाइट निकाल सकते हैं सर. ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. सो यस, दैट इज द टेक्योमेट्री. आपने जो बताया कि मुझे एंगल चाहिए होगा सर, तभी मैं आपको ये हाइट बता पाऊंगा. सो लेट अस हैव दिस थीटा एंगल, ओके. मीनवाइल आपको नीचे भी देखना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, मैं आपको सिर्फ अभी दिखा रहा हूँ, ओके. तो जो है मान लीजिए इतना पोर्शन जो है आपका, और आप जो है इतना चल के जो है आप टेप से मेजर कर पाएंगे, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गया, है कि नहीं? दिस इज माय एयर डिस्टेंस. तो आप क्या कर पाएंगे? सिंपल, जस्ट पुट ए फॉर्मूला ऑफ दिस, यू जस्ट पुट ए tan theta 1, you can say, yes or no? I'm getting, you are getting my point or no? Tan theta 1, what would be the tan theta 1? So I'm just simply saying this one is h1 and this one is h2. So I'm just theta 1 correlate with the h1, okay. सामने की बाजू जो है उसके बाद पास की बाजू, ठीक है, आपको फॉर्मूला जो है tan theta का, ठीक है, h1 upon a. So and the second formula will be tan theta 2 is equal to h2 upon a. So a distance is common, so you just equalize both of them and find, you can find the h1 distance. So that process is called tachyometric survey. So if you want to find the height of a tower, you want to find out the height of a chimney, okay, or if you want to find out the elevation, okay, depth of a valley, ठीक है, तो वो टेक्योमेट्री की मदद से आप फाइंड कर पाएंगे, ठीक है. तो थियोडोलाइट का यूज इस तरह अलग अलग जो है फील्ड में हो सकता है, ठीक है. तो आप जो है ना वो ये सारे 7 पॉइंट्स है वो आप नोट कर लीजिए अपने क्लास नोट में, ठीक है. और जहां कहीं भी आपको लेवल फाइंड करना है, जहां कहीं भी आपको एंगल्स फाइंड करना है, वहां आप थियोडोलाइट यूज कर सकते हैं, ठीक है.
और आप ऐसी ऐसी जो है मतलब कोई लोकेशन आप मुझे बता ही नहीं सकते जहां एंगल नहीं बन रहा हो, ठीक है। आप इंडस्ट्रियल प्लांट में चला जाओ, वहां पे भी एंगल्स होते हैं, ठीक है। आप कहीं पे भी चले जाओ, एंगल्स के बिना जो है that you can say this without surveying it is not possible, ठीक है। if you want to design something you required an angle, so angle you can measure with the help of theodolite or any other means, right। तो एंगल जो है इट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, जहां पे भी एंगल बन रहा है उसकी मदद से आप डिजाइन कर पाओगे। सो अगर ये 7 पॉइंट में से आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स? कोई डाउट है अभी? आपको ये नोट डाउन करना है। नो सर। और हाँ, ऋत्विक યસ સર. તમે સમજાવી શકશો બ્રીફલી શું થિયોડોલાઇટ છે અને થિયોડોલાઇટની મદદથી આપણે કેટલી વસ્તુ કરી શકીએ? હવે આનું શું કરવાનું તમારે કે દરેક પોઈન્ટ જે છે, ધારો કે મેઝરિંગ હોરિઝોન્ટલ એન્ડ વર્ટિકલ એંગલ, તો તમારે એક છે ને રિયલ વર્લ્ડનું કોઈ ફીચર લઈ લેવાનું, ધારો કે બિલ્ડિંગ લઈ લેવાની, કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્લાન્ટ લઈ લેવાનું અને અને એની સાથે રિલેટ કરીને મને સમજાવવાનું સર અહીંયા આપણે થિયોડોલાઇટ યુઝ કરી શકીએ। ખ્યાલ આવ્યો હું શું કહું છું? એક્ઝામ્પલ આપવાનું છે। ઓકે ઓકે સર. ઓકે, સો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ જે છે એનું સર, એક્ઝામ્પલ આપો, બાકી બધા નોટ ડાઉન કરવાનું ચાલુ રાખે। મેઝરિંગ હોરિઝોન્ટલ એન્ડ વર્ટિકલ એંગલ્સ, આના મદદથી આપણે હોરિઝોન્ટલ એંગલ્સ પણ માપી શકીએ અને વર્ટિકલ એંગલ્સ પણ, જેમ કે કોઈ પણ બિલ્ડિંગ ને કન્સ્ટ્રક્ટ કરવા માટે પણ આપણે એંગલ્સ ને ધ્યાનમાં રાખીને કન્સ્ટ્રક્ટ કરતા હોય તો આના મદદથી કરી શકીએ, એના મેઝર કરી શકીએ અને પછી એના ઉપરથી આપણે કન્સ્ટ્રક્ટ કરી શકીએ। પછી લોકેટિંગ પોઈન્ટ્સ ઓન અ લાઈન, જેમ કે આપણે ડમ્પી લેવલ થી આપણે વર્ટિકલ લેવલિંગમાં આપણે ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ પોઈન્ટ્સ આપણે કરી શકીએ। તો તેમાં આપણે ડિફરન્ટ સ્ટેશન લોકેટ કરવા પડે, તો તેના મદદથી આપણે લાઈનમાં ડિફરન્ટ સ્ટેશન લોકેટ કરી શકીએ। પછી પ્રોલોંગિંગ સર્વે લાઈન, તો કે લેવલિંગમાં જ આપણે 2 સ્ટેશન જો કે આપે તો એક સ્ટેશન મૂકીને પછી બીજા સ્ટેશન ઉપર જવા કરતા આનાથી ડાયરેક્ટ આપણે બીજા સ્ટેશન પર લાઈન એક્સટેન્ડ કરી શકીએ। પછી ફાઇન્ડિંગ ડિફરન્સીસ ઓફ લેવલ, એટલે કે બે બે જેમ કે બે સરફેસ છે તેના લેવલિંગ ડિફરન્સ છે, એક વધારે હાઈટ ઉપર છે ને એક ઓછું હાઈટ ઉપર છે, તો તેની જે ડિફરન્સ હોય તો તે માપી શકીએ। રાઈટ રાઈટ। પછી સેટિંગ આઉટ ગ્રેડ્સ, એટલે કે એંગલ્સ આપણે ओके नाउ वेट संतोष। यस सर। हाँ, आप अब जो लास्ट के 3 पॉइंट है वो मुझे समझाइए। सेटिंग आउट ग्रेड्स, कि सर आपको दो दो वस्तु के बीच में जो है सर हम किसी भी उसका अथी निकाल सकते हैं कि वो कितना लेवल पे है, उसके बीच का थीटा कितना है। सेटिंग आउट ग्रेड से हाँ राइट। रेंजिंग कर्व्ड, तो आपकी एक कोई भी इम्पोर्टेंट, हाँ तो एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो है ना ये बेस प्लेट है ना, इसको हम हॉरिजॉन्टल में भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये टेलीस्कोप के हम इस तरह वर्टिकल प्लेन में 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। आपको बात इस दैट्स व्हाई वी कैन मेजर द एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स। और इस टेलीस्कोप को हम ऐसे, अगर मैं आपको प्लान में बताऊं तो प्लान में आप इस तरह का 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये टेलीस्कोप जो है ना वो किसी भी डायरेक्शन में आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हो, आइदर इन अ वर्टिकल प्लेन 360 डिग्री और you can rotate the telescope in the, you can say in a horizontal plane। ये बात आपको समझ में आ रही है? That's why we can measure the horizontal angle as well as vertical angle both, right?
Okay. Now, नेक्स्ट रेंजिंग stoichiometry. कर्व। रेंजिंग कर्व सर, रेंजिंग दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक डायरेक्ट रेंजिंग और एक इनडायरेक्ट रेंजिंग सर। डायरेक्ट रेंजिंग में सर कोई भी वस्तु को हम डायरेक्ट देख सकते हैं, Okay. विजिबल हो। और इनडायरेक्ट Right. रेंजिंग में सर उसको हम जो है किसी बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं सर, उस बीच में वॉल एक बिल्डिंग आ गया तो वो हम इनडायरेक्ट कर Okay. सकते हैं तो Right. रेंजिंग Right. कर्व। Yes. टेक्मेट्रिक सर्वे, Tachyometry. Right. Tachyometry. ये से So you can टेक्योमेट्रिक also सर्वे। divide this word into two parts to remember. One is tachyo, Tacheo, and metric you are aware about. Simple. यस Okay. और अब जो है थोड़े लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए। अगर आपको ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, फ्लाईओवर बनाना है, ठीक है, सिटी में, अगर आपको टनल बनानी है, ठीक है, तब ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल, मान लीजिए आपके पास थियोडोलाइट नहीं है और आप कंपास की मदद से कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, एंगल फाइंड करने के लिए आप कंपास लेके आएंगे, उसके बाद आपको लेवल फाइंड करना है तो डम्पी लेवल लेके आएंगे। So that is a very long procedure. So instead of that, you can use the theodolite. वहां पे आप थियोडोलाइट सेट कर दीजिए एक एंगल पे, एक स्टेशन पे, और वहां से आप जो है टनल का जो सेंटर लाइन है, एंगल कितना है, कितना ग्रेड देना है, कितना स्लोप देना है, वो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय विथ रिस्पेक्ट टू द लेवल्स। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रेफरेंस लाइन के बिना जो है सर्वेइंग पॉसिबल नहीं है। जब भी आप डिस्टेंस मेजर करते हैं, let us say you are just saying the AB distance is equal to 10 meter. That means you are taking A point as a reference point, and then you are starting the measuring, right, towards the B point. So when I say the BA is equal to 10 meter, that means B will be your reference point, and you are measuring the distance towards the A point, right? So that is the importance of the theodolite, and this is the image, you can say, where this is a 3D picture of a theodolite, and we will just, if you want to draw this theodolite, okay, but we will keep it up to here. Now you just have a quick overview of the different components of theodolite. હું તમને સિમ્પ્લિફાઈડ કરું, મેં તમને અસેમ્બલ ની વાત કરી હતી, રાઈટ? If you want to assemble this instrument, how will you assemble? So first and foremost thing, તમે શું કરશો, પહેલા હું તમને ખાલી સિમ્પલ આપી દઉં છું કે first and foremost thing, તમે બેઝ ક્રિએટ કરશો, રાઈટ? This is your base, you can say. Base ઉપર, on that base you will fit a trivet likewise. ખ્યાલ આવે છે? અને પહેલા તમે એની સેન્ટર લાઈન, કારણ કે રેફરન્સ લાઈન જોશે તો એ જે છે એ તમારી સેન્ટર લાઈન બનશે. After that you will fit a screw on it. આવી રીતે તમે સ્ક્રૂ ફિટ કરશો બે, રાઈટ? A screw fit થયા પછી, after that you will set another plate on which our telescope will withstand, or telescope will be supported, right? Likewise, okay, then we will put a plates having the readings. Then we simply construct a structure like this, yes or no, and on which we will fit the telescope. તો કંઈક આવું તમે સ્ટ્રક્ચર બનાવી શકો. અહીંયા તમને ડ્રો કરીને બતાવું તો તમે આ બ્રિજમાં પણ જોયું હશે, ઓકે, સસ્પેન્ડેડ બ્રિજ, અને અહીંયા આપણે જે છે વચ્ચે ટેલિસ્કોપ ફિટ કરશું, પણ આ આપણે જે છે નેક્સ્ટ સેશનમાં શીખશું, રાઈટ? બટ these are the different components of the theodolite, okay, and which you need to draw in the sketchbook. So whenever you come to the next session, just have a sketchbook with you. ખ્યાલ આવે છે? વ્યવસ્થિત રીતે સ્કેલ લઈને આપણે આ ફિગર જે છે નેક્સ્ટ સેશનમાં ડ્રો કરવાની છે, राइट? सो आपको ये जो फिगर आपको अभी दिख रही है, इज इट विजिबल और नॉट? यस, यस सर। ये फिगर हम स्केचबुक में बनाएंगे अच्छे से, ठीक है? और
उसके कंपोनेंट्स के फंक्शंस जो है वो हम डिटेल में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप नेक्स्ट सेशन में आओ तब आपको स्केच बुक लेना है, ठीक है। और वो स्केच बुक में जो है आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता जाऊंगा, ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है, और उसी हिसाब से आप ड्रॉ करते जाना, ठीक है। तो સર આપણે यहां तक બુકમાં हम નથી કરવાની ને સર? अगर कोई, हाँ, બુકના અંદર ડ્રો નથી કરવાની ને? यस, ना बुक में नहीं, क्लास नोट में नहीं। सी क्लास नोट इज फॉर, यू कैन से, द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, एंड द स्केच वर्क वी विल डू इन द स्केच बुक। જે કંઈ પણ ડ્રોઈંગ્સ આવશે, એક ડ્રોઈંગ છે, આવી ઘણી બધી ડ્રોઈંગ્સ આવશે, તો આપણે સ્કેચ બુક બનાવીશું, રાઈટ, વી વિલ પ્રિપેર અ સ્કેચ બુક ફોર ધ સ્કેચીસ, ઓકે, સ્કેચ બુકમાં ડ્રો કરતું જવાનું, ક્લિયર. And the class note is for the definitions, to understand the different technical terms that you have in the next, right? And we will understand how to draw this figure. Okay. If you have any doubt, you can ask me. The meeting also after the writing a enrollment number. Sujal, I will mark absent for you. You are not responding me. You can leave the meeting. You can leave the meeting and join the another session.